Yes, students, this is your new chapter, Contribution of Women in Independence. We will study in this chapter that what was the participation of the women in independence and what was the role of women in independence. We will study Miss Fatma Jinnah, Begum Rana Liaquat Ali Khan, and other personalities who have a great influence in history, and we can never forget them. Okay? So students, women in Pakistan make up of 48.76% of the population according to the 2017 census of Pakistan. Women in Pakistan have played an important role throughout the Pakistan history. और इसका जो है आप ये कह सकते हो कि किस तरह से जो है वो उन्होंने हिस्ट्री के अंदर अपना एक कह सकते हो रोल प्ले किया. ठीक है, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द रोल ऑफ द वुमेन इन इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान. The Independence Day of Pakistan is a reminder of the struggle and sacrifices that were made during the freedom movement by not only men but also women as well. It means that we can not give all the credit to the males or men in a इंडिपेंडेंस मूवमेंट. फ्रीडम मूवमेंट इज़ द तहरीक आज़ादी, जिसमें जो है रियलाइजेशन कराई गई थी, रियलाइज़ करवाया गया था कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो मुसलमानों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. दे कैन लॉस देयर आइडेंटिटी. अगर उनके पास इंडिपेंडेंट स्टेट ना होती तो उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी मुसलमानों की ना होती. जिस तरह हम आज के टाइम में जो है वो इंडिया को देख सकते हैं कि वहाँ मुसलमान किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, उनका सर्वाइवल जो है वो कितना ज़्यादा मुश्किल है. ठीक है, it is not wrong to say that active participation of women of subcontinent had accelerated the independence movement. Independence movement क्या थी हमारी? वही आज़ादी की तहरीक, जिसमें हमें रियलाइज़ करवाया गया था कि इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंटली आप जो है वो अपनी लाइफ किस तरह से गुजार सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं. एक्सेलरेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स तेज़ करना, रिमाइंडर का मतलब है याद दहानी, सेक्रीफाइस का मतलब है कुर्बानी. ठीक है, सब कॉन्टिनेंट जो है, जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे तो उसको जो है वो सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, यानी बरे सगीर कहा जाता था. ठीक है, डिस्पाइट ऑफ सो मैनी हर्डल्स एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस, दीज मुस्लिम वुमेन्स मेड देयर प्रेजेंस felt in the political arena. They came out of their homes and struggled to achieve a separate homeland as a nation. As nation is celebrating the 70th Independence Day, let's look back on the struggle of the prominent women of pre-independence era. Era means time period. ठीक है? So let's start the first personality of independence movement, Miss Fatma Jinnah. You all know that Miss Fatma Jinnah, known as Madre Millat and mother of the nation, she was a Pakistani politician, and as a occupation, her occupation is then she's a dental surgeon. She was the younger sister of Quaid-e-Azam, and you can say she was an advisor to her elder brother Muhammad Ali Jinnah, who later became the first Governor General of Pakistan. You know that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the first Governor General of Pakistan. So let's read out the contribution of Miss Fatma Jinnah in independence movement. Students, she was an active member of All India Muslim League. All India Muslim League was the representative platform for the Muslims. आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था मुसलमानों का, मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी थी जो मुसलमानों को राइट दिलाने के लिए बनाई गई थी, जो मुसलमानों की आइडेंटिटी उनको वापस दिलाने के लिए बनाई गई थी. यानी तमाम इंडिया के मुसलमान, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी. जैसे हमारे क्लास के अगर प्रीफेक्ट होते हैं वो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी थी जो मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट के अंदर रिप्रेजेंट करती थी, जो ये बताती थी कि मुसलमानों के क्या राइट्स हैं और क्या उनको करना चाहिए अपनी आइडेंटिटी को वापस लेके आने के लिए.
ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन किसकी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। In All India Muslim League, where she served as vice president of the women's wing. Women's wing का मतलब ये है कि जैसे एक मेल एरिया होता है और दूसरा फीमेल एरिया होता है, तो जो फीमेल कमेटी थी उसकी मिस फातिमा जिन्ना वाइस प्रेसिडेंट थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो वुमेन्स विंग था, मिस फातिमा जिन्ना उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद, he writes in his article an enduring legacy. ये एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने मिस फातिमा जिन्ना के बारे में क्या कहा है। लिगेसी का मतलब क्या है, मिरास। enduring का मतलब होता है बर्दाश्त। People do not realize that just by accompanying Jinnah wherever he went during the 1940s, Fatma Jinnah was teaching Muslim women to stand shoulder to shoulder with men during the freedom struggle. यानी जो है मुजाहिद शरीफुल मुजाहिद ने क्या अपनी किताब में कहा है, आर्टिकल में कहा है कि 1940s में अगर आप जितना भी देखें, मिस फातिमा जिन्ना जो है वो शोल्डर टू शोल्डर कायद आजम के खड़ी थी। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी कायद आजम को। ठीक है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी, एक करेज प्रोवाइड करती थी, मोटिवेशन थी। ठीक है, शोल्डर टू शोल्डर खड़े होने का मतलब यही है कि एक करेज प्रोवाइड की जाए। Numerous pictures of the period show Fatma Jinnah walking alongside Jinnah and not behind him. यानी वो कायदे आज़म, अगर हम पिक्चर्स भी जो हैं वो देखें मिस फातिमा जिन्ना की और कायदे आज़म की, तो हम देखते हैं कि वो दोनों बिल्कुल साथ खड़े हैं, बराबर खड़े हैं। मिस फातिमा जिन्ना किसी भी पिक्चर में उनसे पीछे खड़ी हुई नजर नहीं आएंगी आपको। इसका मतलब क्या है कि वुमेन्स को अपने जो ब्रदर्स थे, हस्बैंड थे, फादर्स थे, उनका किस तरह से साथ देना था, यानी शोल्डर टू शोल्डर रहना था, उनको मोटिवेट करना था, उनकी बैक के बजाय उनके साथ खड़ा होना था। ठीक है, द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर एंड इट वाज वन बोथ द ब्रदर एंड सिस्टर विश टू कन्वे टू द नेशन। ये उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ किया कि आपने किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। During the transfer of power in 1947, she formed the Women's Relief Committee, which later formed the nucleus for the All Pakistan Women Association, APWA, founded by Rana Liaquat Ali Khan. मिस फातिमा जिन्ना ने 1947 में वुमेन्स रिलीफ कमेटी बनाई थी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप न्यूक्लियस कह लो, न्यूक्लियस जो है वो एक मेजर चीज़ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही अफवा एसोसिएशन में। अफवा एसोसिएशन जो थी वो राना लियाकत अली खान ने बनाई थी, एंड शी वाज द वाइफ ऑफ लियाकत अली खान। She also played a significant role in the settlement of Mahajers in the new state of Pakistan. स्टूडेंट्स मेक अ करेक्शन, इन 1967 लिखा हुआ है आपकी बुक पे, आप उसको करेक्ट कर लें। इन 1947 Jinnah gave a historical speech to the nation. She warned that cowards die many deaths, द वेलियंट नेवर टेस्ट डेथ बट वंस। यानी जो बुज़दिल इंसान होता है वो जब उसके सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, कोई डिफ़िकल्ट इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है लाइफ में, तो वो जो है वो डिसहार्ट हो जाता है या अपनी करेज जो है वो ख़त्म कर देता है। बल्कि एक जो ब्रिलियंट, एक जो बहादुर इंसान होता है, या आप कह लो एक लीडर होता है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता। ठीक है, बल्कि वो इन सारी हर्डल्स को फेस करता है। नाउ द नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज राना लियाकत अली खान। Okay students, Rana Liaquat Ali Khan was the wife of Liaquat Ali Khan, and Liaquat Ali Khan was the first Prime Minister of Pakistan. The history of Pakistan movement is incomplete without mentioning the services of Begum Rana Liaquat Ali Khan. Mentioning means का मतलब क्या है, mention करना यानी बताना। ठीक है, she was born in Agra, और आगरा जो है वो इंडिया का एक शहर है। She was educated at the University of Lucknow. This is a one word, Lucknow, okay, where she obtained a first class master degree.
विद ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स इन 1929, यानी 1929 में राना लियाकत अली खान ने मास्टर डिग्री ली थी। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। शी आल्सो सर्व्ड एज इकोनॉमिक एडवाइजर to Jinnah's Pakistan Movement Committee and later became First Lady of Pakistan when her husband Liaquat Ali Khan became Pakistan first Prime Minister. इकोनॉमिक एडवाइजर का मतलब क्या है कि इकोनॉमी के बारे में जो है, उनके फाइनेंस के बारे में उनको मशवरे देती थी, ठीक है, बिकॉज शी वॉज द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. As the First Lady of Pakistan, she launched programs for women's development in the newly founded country. लॉन्च्ड का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कराए उन्होंने प्रोग्राम्स, जिससे उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की कि वुमेन्स की डेवलपमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लेटर शी स्टार्टेड हर करियर एज अ पॉलिटिकल लीडर दैट लास्टेड अ डिकेड. Begum Rana served as Pakistan ambassador. Ambassador is the representative of a country. For example, ambassador of Pakistan will represent the Pakistan in foreign platforms. ठीक है. So she was the Pakistan's ambassador to the Netherlands in the 1950s and ambassador to Italy in 1960s. ठीक है. She was the ambassador of Netherlands in 1950s and ambassador to Italy in 1960. From 1973 to 1976, she was elected governor of Sindh. यानी वो गवर्नर बनी थी सिंध की. शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन इन अ डेलीगेट टू द यूनाइटेड नेशंस. 1952 में जो है वो डेलीगेशन में शामिल थी यूनाइटेड नेशंस के. डेलीगेशन क्या होता है, 4-5 लोगों का वफ्द होता है, ठीक है. शी रिसीव द जाने आदम मेडल फ्रॉम यूएसए एंड वुमेन ऑफ अचीवमेंट मेडल इन यूएसए फ्रॉम यूएसए इन 1950. मदर ऑफ पाकिस्तान इन 1950 फ्रॉम यूएसए. Nishane Imtiaz in 1959, Grand Cross of Orange, NASA in 1961. From Netherlands, International Gamble Award for Services to Humanity in 1961 to 62. So students, this is all about the Miss Rana Liaquat Ali Khan and Miss Fatma Jinnah.